Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today we are going for a very interesting topic, that is uniform and non-uniform motion. Let's start with the uniform motion first. Motion, as you all know from previous video, motion में हमने पढ़ा था जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती थी टाइम के रिस्पेक्ट में, with respect to time in concern with the reference point. Here now it is a uniform motion. So uniform मतलब एक जैसा चेंज, अगर चेंज भी हो रहा है एक जैसा, द हिंदी वर्ड एक जैसा रहना मूवमेंट का, ठीक है। यानी डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी should be same for all time intervals. और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक जैसा जब मोशन रहता है यानी इक्वल डिस्टेंस चलती है बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी से द मोशन इज uniform motion. So इसकी definition we can write like that: when a body or object, it's up to you, you can use any word, आप body भी use कर सकते हैं, object भी, when a body covers equal distance in equal intervals of time, howsoever small these intervals may be. कितने भी स्मॉल हुए इंटरवल्स, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा. एज वी हैव अ यूनिफॉर्म इन आवर स्कूल, तो उसमें सब बच्चे एक जैसे लगते हैं, मीन्स दे आर इन अ सेम यूनिफॉर्म. तो जो सेम सा मोशन रहता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी, देन अ बॉडी इज said to be in uniform motion. Okay, there is one word over here. First, equal distance. You can use here equal distances also. You can write equal distances in equal intervals of time. Now, howsoever small intervals means इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे टाइम का इंटरवल हाफ सेकेंड ही क्यों ना हो, 1 सेकेंड ही क्यों ना हो, इट डजंट अफेक्ट. सो now let's illustrate it with the help of a table. Suppose here is the time in seconds and distance in meters. Students, हमेशा ये आदत डाल लो, whenever you are writing about distance, whether you are doing any numerical related to distance, displacement or time, and even when we approach towards speed, velocity, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा. So आपको एक बात का ध्यान रखना है, that units should be there. units के बिना आपने कुछ भी नहीं लिखना है. अगर आप suppose टाइम की बात कर रहे हैं तो you have to write time in seconds, distance in meters, so that it can be clearly specified. Now suppose at the beginning of motion, time is not, we are considering time to be 0 seconds, distance is also not moved 0. When here the time is 1 second and body moves 5 meters, here the time is 2 seconds, body moves 10 meters, 3 seconds के बाद 15, 4, 20, 5, 25, 6, 30, 7, 35 and so on. It starts moving like that.
ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर मूव की, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर्स, एंड इन योर 5th second 25 meters, 6th second 30 meters, 7th second 35 meters. Now, just to represent its pictorial representation, let's see over here. Before that, I'll let you know distance traveled in first second कितना होगा. Just note it down so that you can easily able to get an idea. Distance traveled in first second कितना होगा. I am writing here. Distance traveled in first second. फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. वेरी फर्स्ट सेकंड इट इज योर 5 minus 0, that is 5 meter. Now distance traveled in second, that is 10 minus 5, that is 5 meter. And again distance traveled in third second, that is your 15 minus 10, again 5 meter, and so on. तो आप क्या देख रहे हो, वी आर गेटिंग 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, एक सेम सी वैल्यू, एक जैसी वैल्यू हमारे पास आ रही है फॉर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम. पहले इंटरवल में कितनी आई, फर्स्ट सेकंड में 5 minus 0, सेकंड में 10 minus 5, यानी जब वो फर्स्ट से सेकंड में आया then 10 minus 5, जब थर्ड सेकंड में पहुंचा 15 minus 10, अगेन 5 मीटर. तो आप देख रहे हो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब एक जैसी वैल्यू आ रही है. दैट शोज व्हाट दिस शोज, ये क्या शो कर रहा है फ्रॉम दिस टेबल, व्हाट डज इट शोज, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है that in first second, in second, third second, fourth second, and so on. Let's take up to only 5 seconds. तो हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस, like this, 5 here also, 5 here also, 5, इस तरह मूव कर रहे, 5 and so on, 5 मीटर. इट मीन्स फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड में 10 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट O, और इनके आपस का डिफरेंस भी कितना आ गया, 10 minus 5 is 5 ओनली. देन थर्ड सेकंड में बॉडी कहां पे थी, 15 मीटर्स पे, और सेकंड और थर्ड टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना था डिस्टेंस का, 5 मीटर. वैसे ही अब आप फोर्थ सेकंड की बात करें तो बॉडी ट्रेवल्ड अप टू 20 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड, ये कितना आ जाएगा, दिस इज आल्सो 12 minus 15, अगेन 5 मीटर, एंड सो ऑन. तो इस तरह में आप क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस एंड टाइम में एक रिलेशन बन गया. डिस्टेंस एंड टाइम हैज सर्टेन रिलेशन. And what is that relation? What is that relation? सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, अपने मन में इसका जवाब सोचिए. आई एम गिविंग यू 5 seconds टू थिंक. अपने आप सोचिए. डिस्टेंस एंड टाइम हैज सर्टेन रिलेशन. व्हाट इज दैट रिलेशन? इसे देख के हमें क्या लग रहा है, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन? आई होप सबको आंसर मिल गया होगा. नाउ लेट मी टेल यू, इन दिस केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पता चला, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. या लिख भी सकते हैं, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम in uniform motion.
यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट्स ओके। नाउ तो आपको क्या पता चला? इससे पता चलता है इक्वल डिस्टेंस बॉडी मूव करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दो ग्राफ इज आल्सो देयर फॉर यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन मैं चाहता हूं ग्राफ्स को हम एक अलग वीडियो में डिटेल में करेंगे, लेकिन फिर भी जस्ट टू शो यू द कि कैसे वो वर्कआउट करता है, कैसे हम ग्राफ में वर्क करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट। वैसे इसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए, अब हमने क्या देखा था, डिस्टेंस और टाइम। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। अब why I took time on x axis and y distance on y axis, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है। टाइम तो चलता रहेगा, भले ही कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, टाइम विल कीप ऑन मूविंग। तो टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम हमेशा, ये थंब रूल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इन एक्स एक्सिस एंड जो उस पर डिपेंड करता है दैट शुड बी इन वाई एक्सिस। तो यहां देखिए हमने क्या टेबल में देखा था, here the time is 1 second 2 3 4 5, सिंपल सा करते हैं, ठीक है। और 5 10 15 20 लाइकवाइज। सो यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, दिस डिस्टेंस इज इन मीटर्स, सो यू हैव टू राइट व्हेन एवर यू मेक ए ग्राफ डिस्टेंस इन मीटर्स, टाइम इन सेकेंड्स, या आप सिंपल t यहां पे लिखेंगे इन सेकेंड्स ब्रैकेट में, डिस्टेंस इन मीटर्स। नो 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, लेट मी मेक इट वंस मोर, 3 सेकंड में 15 मीटर, लाइकवाइज 4 सेकंड में इट इज 4 सेकंड में इट इज 20 meters. So you can see this will be a straight line. यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन, एक यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा। अब एक जैसा जब भी ग्राफ के केस में एक जैसी बात बोलते हैं, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? अब इससे क्या पता चलता है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तभी ऐसा आया। अगर ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होता देन इट कुड नॉट बी अ स्ट्रेट line. Okay students, let's now move to non-uniform motion. So now it is non-uniform motion. Non-uniform motion की बात करेंगे तो non-uniform as it name says, जैसे इसका नाम हमें बता रहा है, which is not uniform मतलब एक जैसा नहीं, ये एक जैसा नहीं मीन्स व्हाट? वैसे तो जितने भी मोशंस हैं पूरी दुनिया में, दे आर बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो एक आइडल केस है, इट्स वेरी रेयर। जनरली द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं रहता मोशन, बिकॉज या तो कभी टाइम इंटरवल्स में वेरिएशन आएगी, चेंज आएगा, या फिर डिस्टेंस में आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे समझेंगे, कैसे बताएं? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it covers unequal distances in equal intervals of time. Unequal distances in equal intervals of time. Unequal distances in equal intervals of time. ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी इलुस्ट्रेट करेंगे एग्जांपल से। जैसे
सेम एज वी हैव डन फॉर योर क्या अपना ये यूनिफॉर्म मोशन। नाउ हियर आल्सो इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इन सेकेंड्स, ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, एंड डिस्टेंस इन मीटर्स। चलो इस केस में भी हम मान लेते हैं दिस मोशन स्टार्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, देन 1 में 1, 2 में लेट इट बी 4, 2 let it be 3, 4 third second let it be 7, and for 4th second let it be 10, and so on। ये चलता जाएगा। So distance covered by object during first second कितना हो गया? Let me write it here, let me write it here only। Distance covered by object in first second, first second में क्या होगा? Distance covered by an object in first second कितना होगा भाई? सिंपल सी बात है, वेरी फर्स्ट सेकंड में इट विल बी 1 minus 0, 1 मीटर। अच्छा, नाउ डिस्टेंस covered by an object in second, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? here it is 3 minus 2, 3 minus 1, sorry, 3 minus 1, that is 2 meters, 3 minus 1. Now distance covered by an object, same thing, third second में कितना आ जाएगा जी? 7 minus 3। अब देखिए, आप यहीं पे देख पा रहे हैं ये यूनिफॉर्म मोशन वो कितना था? 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या है? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, एक जैसा नहीं रहा। सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। वैसे ही इन 4th सेकेंड इट इज 10 minus 7, अगेन 3। तो आप देख रहे हैं 1 से 2, 2 से 4, वैल्यू फिर 3 हो गई। सो ऑन, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ऐसे मोशन को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम ऐसे दिखा भी सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दैट। अब हमने कहा जी ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपका मोशन स्टार्ट होता है। ओके, ड्यूरिंग सेकंड इट इज, यहाँ पे ये 1 मीटर था, नाउ यहाँ पे ये 2 मीटर हो गया। here now it is 4 meters, here again 4th सेकंड में ये हो गया आपका लगभग 3 मीटर्स के आसपास, एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन इट। आप देख रहे हैं अलग अलग इंटरवल्स में ये अलग अलग शो कर रहा है। ये देखिए, नाउ हियर यू कैन इजीली सी, यहाँ पे ये 1 मीटर था, now up to here it is 3 meters, up to here it is 7 meters, and up to here it is 10 meters। तो फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर, सेकंड में ये इट कवर्स 3 मीटर, थर्ड सेकंड के एंड में 7 मीटर्स कवर कर लिया, एंड 4th सेकंड के एंड में 10 मीटर्स कवर कर लिया। तो यहाँ कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको। सो सच अ मोशन इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, एनी व्हीकल, यू कैन से फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग इन क्राउडेड रोड, ठीक है, बस एंटरिंग और लीविंग बस स्टॉप, ये सब इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं आपके, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार।
लेट्स सी इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो। अब इसे भी सिंपल तरीके से करेंगे। ग्राफ्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, विल डू सेपरेटली इन सेपरेट वीडियो, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में अगेन टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस इन मीटर्स along y axis, this is x axis. Okay, now time here in seconds: 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, like that, 3 4 5, likewise. And here the distance you can go for 5 10 15 20. Okay, in first second if it travels up to 1 meter, like that, here this is the thing. Okay, then again in second it is 3 meters, it will be somewhere here, यहाँ पे आएगा 3 meters. And in third second it traveled up to 7 meters. 7 meter यहाँ जैसे आएगा, just यहाँ पे अगर आपका 6 7 8, हाँ, yes, it will be like that. 7 meters will be somewhere here. In third second it is 7 meters. And in your fourth second it is 10 meters, likewise here. अब देखिए, जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह चल जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 मीटर, सॉरी, सो इट विल बी अ कर्व. यूनिफॉर्म के केस में क्या था? यूनिफॉर्म के केस में इट वाज अ स्ट्रेट लाइन. अब ये क्या चीज आई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इस टाइप में कर्व आएगा. एज इट इज इंक्रीजिंग सो इट इज ऑन इंक्रीज वे. सो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज लाइक दैट. फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट वाज अ स्ट्रेट लाइन. अब it means distance is not proportional to time. और यूनिफॉर्म में क्या था? Distance was proportional to time. So I hope the concept of uniform and non-uniform motion is very much crystal clear to you. Revise it thoroughly and precisely. And in next video we'll see about very interesting concept, that is speed and velocity. Till then, revise it thoroughly.